Hi kids, welcome to the session. This is Imanshi Singh, your biology master teacher at Vedantu. So in today's session, kids, we are going to discuss about your fungi, right? We are going to talk about your kingdom fungi, introduction to the fungi and its classification. Before we start the session, this is my introduction. You can see and learn about me, everything on this slide. Moving forward, kids, so let's get started with today's session. So first thing that we are going to talk about is your kingdom fungi. So talking about your kingdom fungi, bache, there is presence of eukaryotic organisms, right? They are eukaryotic organisms, and along with this, they are multicellular in nature. There is one particular exception to this. If we talk about the exception is yeast. Yeast is your unicellular fungi, right? It's a unicellular fungi. Rest all of them are multicellular. When we talk about the multicellular structure, they are mainly filament-like, right? They're going to have a long filament-like structure. तो बिल्कुल filament के जैसे दिखाई देंगे. They're eukaryotic, multicellular, heterotrophic organism. Heterotrophic organisms that can be either saprophytic or they can be parasitic, which means they are going to grow upon your dead and decaying matter, or they can be present in a symbiotic association. They can be present in a symbiotic association. So let's talk about them. सबसे पहली चीज बच्चे हमारे पास आ जाएगा saprophytic. Saprophytic means that they are going to obtain the nutrition from the dead and decaying matter. And in this case, they are going to act as your decomposers. So they are going to do the process of decomposition, decomposers, right? Next one is parasitic, which means they are going to grow upon your living organisms, in which there can be presence of your plants or your animals, and in this case, they are pathogens, which means they are going to cause some disease. Lastly, talking about the symbiotic association. So talking about the symbiotic association, there are two different types of symbiotic association. The first one is lichen. In the lichen, the fungi is present in an association with algae. There is presence of either algae or there is presence of blue-green algae, that is cyanobacterium. तो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे या एल्गे के साथ एसोसिएशन प्रेजेंट होगा आपके फंजाई का, विच इज नोन एज लाइकेन. तो यहाँ पे बच्चा लाइकेन में क्या होगा हमारे पास, द एल्गे इज गोइंग टू प्रोवाइड फूड, द एल्गे इज गोइंग टू प्रोवाइड फूड and the fungi is going to provide the minerals, right? The fungi is going to provide the minerals. So these algae that do not have a well developed root, that cannot absorb the nutrients from the soil, जो soil से proper nutrients को, proper water को absorb नहीं कर पाएगा, तो वो minerals और इसके साथ साथ water कौन provide कराएगा, fungi provide कराएगी, and in return the algae is going to provide nutrition to the fungi. Yes, this is known as lichen. So it's a symbiotic association. सिम्बायोटिक का मतलब हो गया कि जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ बेनिफिट मिल रहा है. The next type of association that you can see is your mycorrhiza. So mycorrhiza एक सेम तरीके का एसोसिएशन है in which there is presence of fungi, और इस fungi के साथ कौन प्रेजेंट है, the roots of higher plants, right? There is presence of roots of higher plants. तो आपके पास हायर प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. तो यहाँ पे बच्चा सेम चीज चलेगा, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. The fungi is going to provide the minerals, right? The fungi is going to provide the minerals, specifically phosphorus and potassium. और ये दोनों minerals को किसको provide कर देगा, higher plants को. In return, the higher plants are going to produce your food, right? They are going to show the photosynthesis and they are going to synthesize the food, और ये food किसको provide कर देंगे, fungi को. So this kind of association is known as symbiotic association. So let's have a recap, right? तो हमारा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है अभी तक. We have discussed that they are eukaryotic organism, they are multicellular, they can be heterotrophic. If they are heterotrophic, in this case, they can be saprophytic in nature, parasitic in nature, or they can be present in a symbiotic association, such as lichen, in which the algae is present in an association with fungi. Algae will provide the food and the fungi will provide the minerals and water. Same kind of association present with the roots of the higher plant, in which the plant will provide the food and the fungi will provide minerals.
is known as mycorrhiza. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Along with this बच्चे, what is going to happen when we are talking about your kingdom fungi? तो fungi के अंदर बच्चा cell wall present होते हैं. They have the cell wall, right? This cell wall is made up of chitin, and along with chitin there is presence of polysaccharides. What are polysaccharides, kids? So talking about the polysaccharides, these are sugar. तो शुगर के साथ साथ काइटिन प्रेजेंट है. अब ऐसा है बच्चों की हमें ना काइटिन तो बहुत आसानी से याद रहता है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हमें काइटिन याद रहेगा. But the thing that we are going to forget is polysaccharides. So please try to remember the polysaccharides as well. नेक्स्ट हमारे पास आगे आ गया बच्चे की सेल वॉल प्रेजेंट है. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, which means they are present everywhere, right? They are present everywhere. हर जगह पे हमारे पास देखने को मिलेंगे फंजाई. They are present in soil, they are present in water, they are present on animals, they are present on plant. हर जगह पे present है. And why is it so? ऐसा क्यों है कि हमारे पास ये कॉस्मोपॉलिटन है नेचर में? The reason is cosmopolitan due to all they require for the growth is warm and humid temperature. So if there is presence of warm and humid temperature, these organisms are going to grow, right? तो ये हमारे पास फंजाई क्या करेगी, वहां पे इजीली ग्रो कर जाएगा. वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर विल बी प्रेजेंट. सो दिस इज सेल वॉल एंड कॉस्मोपॉलिटन नेचर. आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चे. विद दिस लेट्स टॉक अबाउट द सेल बॉडी टाइप ऑफ द फंजाई. सो टॉकिंग अबाउट द बॉडी, द बॉडी इज मेड अप ऑफ माइसीलियम. किससे बना है बच्चा बॉडी? माइसीलियम से बना हुआ है. So, सबसे पहली चीज ये फिलामेंटस होते हैं. ठीक है, फिलामेंटस लाइक ऑर्गेनिजम्स है, तो बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट है. दीज फिलामेंट्स आर योर हाइफे. तो इन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? हाइफे. बहुत सारे हाइफे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरवीन कर जाएंगे, राइट? दे आर गोइंग टू इंटरवीन विद ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ माइसीलियम. सो दिस इज द एंटायर बॉडी दैट यू कैन सी. Now talking about the mycelium, बच्चे, there is presence of the mycelium is created with the help of your hyphae. So talking about your hyphae, बच्चे, there are two different types of hyphae. So hyphae, first of all, is the unit of, it is the unit, right? It is the unit of mycelium. ठीक है, unit of mycelium. Along with this, there are two types of hyphae. How many types of hyphae are present? Two types of hyphae are present. So let's talk about them. The first one that you can see is your aseptate. And the next one is your septate hypha. तो सबसे पहले बच्चे हम ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सेप्टा का मतलब क्या होता है. So we have a word known as septa. Septa means wall, right? Septa is a wall जो किसी भी चीज को सेपरेट करने वाली है. तो in case of your septate hyphae, this is how the hypha is going to look like. तो ये आपके पास एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे ये वॉल्स प्रेजेंट है. कैन यू सी द सेपरेटिंग वॉल्स? ये सेपरेटिंग वॉल्स क्या है? दीज वॉल्स आर योर सेप्टा. तो ऐसा हाइफा जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, और ये सेप्टा क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे. इसको क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफे बोलेंगे. ठीक है, सो दिस इज सेप्टेट हाइफा. नेक्स्ट वन इज एसेप्टेट. तो एसेप्टेट में क्या होगा बच्चा? वी हैव दिस कंटिन्यूअस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और इस कंटिन्यूअस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. सो इट्स लुक्स मल्टी सेल्यूलर, है ना? कैसा दिखाई दे रहा है? मल्टी सेल्यूलर दिखाई दे रहा है. सो देयर इज नो वॉल, there is no wall, and there is presence of a huge mass with many nucleus. क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? सीनोसिटिक. सो दिस काइंड ऑफ हाइफे इज नोन एज सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट. सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट, इसको हम ये बोलते हैं सीनोसिटिक और एसेप्टेट हाइफा. ठीक है, दूसरा हो गया सेप्टेट, जहां पे सेप्टा या फिर तो वॉल प्रेजेंट होगी जो आपके न्यूक्लियस को सेपरेट करती है. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम स्टार्टिंग में याद कर लेते हैं कि कहाँ पे सीनोसिटिक प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एसेप्टेट प्रेजेंट होता है. तो फंजाई में हमारे पास बच्चों 4 क्लासेस प्रेजेंट है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 क्लासेस. सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज.
So in case of phycomycetes, only in case of phycomycetes, phycomycetes, only in case of phycomycetes you are going to see your aseptate sinusitic hypha. बाकी हमारे पास जो 3 क्लासेस है, that is ascomycetes, basidiomycetes, and the last one that is deuteromycetes. इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? दे आर गोइंग टू हैव योर सेप्टेट हाइफा. ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. तो हमारे पास बॉडी प्रेजेंट है. द बॉडी इज नोन एज माइसीलियम. द यूनिट ऑफ माइसीलियम इज हाइफे, राइट? हाइफे इज द यूनिट ऑफ माइसीलियम. There are two types, aseptate, in which there is no wall and there is a huge mass with many nucleus. So the condition is known as sinusitic and aseptate, present only in case of your phycomycetes. Next one is septate, where there is presence of septa, that is the common wall, as you can see, right? So these are the common walls that are present, which separates the nucleus, and they are present in ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. क्लियर बच्चा? चलो, सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होते हैं, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. ऑल यू नीड टू हैव इज सम पेशेंस. Now, first of all, we are going to talk about the mode of reproduction. So, talking about the mode of reproduction, they are going to have your vegetative reproduction, they are going to have your asexual reproduction, and they are going to have your sexual reproduction as well. So all the 3 types of reproductions are present in case of your fungi. Talking about the vegetative mode of reproduction, so it is mainly shown by your fragmentation. The first one is fragmentation. So in this fragmentation, what is going to happen? Let's say this is your hypha. तो ये हमारा हाइफा आ गया, राइट? दिस इज द हाइफा. दिस हाइफा इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, राइट? दिस हाइफा इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. तो हमने न्यूक्लियस भी बना लिया, न्यूक्लियस भी बना लिया, न्यूक्लियस भी बना लिया. अब ये क्या हो गया बच्चे? ये ना बीच में से क्या हो गया? टूट गया. ये बीच में से क्या हो गया? टूट गया. अरे यार, ऐसे टूट रहा है तो गलत हो गया हमारे साथ, है. दोबारा से बना लेते हैं हम लोग. सो मान लेते हैं कि ये हमारे पास हाइफा है. दोबारा से बना लेते हैं. दिस इज द हाइफा दैट यू कैन सी. सो द हाइफा इज septate type of hypha, right? I am creating the septa. So it is septate hyphae. In this hypha, what is going to happen? Let's say there is some kind of damage, right? There is some kind of damage because of which 2 fragments are created. So you can see 2 fragments are created. Now each of the fragment, each will grow into a new mycelium. It will form a new mycelium. This will form a new mycelium. So this kind of condition is known as fragmentation, and this fragmentation is shown by multicellular, which means all of the fungi. तो सारी की सारी फंजाई हमारे पास क्या कर रही है? मल्टीसेल्यूलर. सारी की सारी फंजाई हमारे पास मल्टीसेल्यूलर हैं और वो क्या करेंगे? हमारे पास फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे. Other than this, in case of your unicellular fungi, that is yeast. तो आपके पास क्या आ गई बेटा? यीस्ट आ गई. तो यीस्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास? इट इज यूनिसेल्यूलर. तो यूनिसेल्यूलर होने की वजह से बच्चा ये 3 तरीके का 2 तरीके से रिप्रोडक्शन शो कर सकता है. वन इज बाइनरी फिजन. यू नो अबाउट बाइनरी फिजन, राइट? तो एक सिंगल यीस्ट सेल है. दिस विल डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल्स. तो ये आपके पास हो गया बाइनरी फिजन. एंड अदर देन दिस इट कैन शो बडिंग, राइट? तो क्या करेगा? बडिंग शो करेगा. तो ये हमारे पास यीस्ट है. यीस्ट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चा? एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाएगी, राइट? दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म नोन एज बड. सो बड इज अ स्मॉल आउटग्रोथ. नाउ दिस आउटग्रोथ विल ग्रो इन साइज. इसका साइज कैसा होता चला जाएगा बच्चा? बड़ा होता चला जाएगा, राइट? इट विल ग्रो इन साइज एंड आफ्टर ग्रोथ, चलो लिख देते हैं इसको, ग्रो इन साइज, इट विल शो ग्रोथ. ठीक है, एक बार जब वो सफिशिएंटली ग्रो कर जाएगा, देन फाइनली इट विल डिटैच. फाइनली क्या कर जाएगा? डिटैच कर जाएगा. एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू यीस्ट, राइट? सो दिस इज द न्यू इंडिविजुअल दैट यू कैन सी. न्यू इंडिविजुअल, दैट्स इट. सो इट विल डिटैच टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. These are your vegetative mode of reproduction. So vegetative mode of reproduction में fragmentation आ जाएगा.
which is more common, shown by your multicellular fungi. The next one is yeast, which is unicellular. It is going to show binary fission, just like your bacteria, or it can show budding. Clear, bachcho? Yes. Let's move forward. The next one is the asexual mode of reproduction. Asexual reproduction. So this asexual reproduction takes place with the help of formation of spores. क्या बनेंगे बच्चा यहाँ पे? There will be formation of spores. बहुत सारे spores बनेंगे, ठीक है? अब ये spores बच्चे हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास होता है कोनिडिया, एक होता है कोनिजिया, और दूसरे होते हैं हमारे पास स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है. तो स्पोरेंजियोस्पोर्स को पढ़ने से पहले हम इस ब्रेक को इसको तोड़ देते हैं, स्पोरेंजिया और स्पोर. तो यहाँ पे बच्चा स्पोरेंजिया. तो स्पोरेंजिया क्या होता है बच्चे? स्पोरेंजिया इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक स्ट्रक्चर in which spores are present, right? There is presence of spores in which spores are present. So there will be formation of spores or the spores are present. This is sporangia. So sporangiospores. How are you going to define the sporangiospores? The spores produced. Spores, I hope it is visible to you. Spores produced inside sporangia. Right? They are produced inside sporangia. दिस इज नोन एज योर स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है. अब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी. मोबिलिटी. तो मोबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके के हमारे पास बच्चे. व्हाट आर दीज 2 डिफरेंट टाइप्स? सबसे पहला हमारे पास आ गया जूस्पोर्स. सो दीज जूस्पोर्स आर मोटाइल स्ट्रक्चर that is going to have flagella. So they have flagella, and because of the presence of flagella, they are motile. So they can move here and there, right? They can swim here and there. The next one is aplanospores. Next one is aplanospores. और ये aplanospores कैसे बच्चे? They are the non-motile spores. They are non-motile spores, right? They cannot move anywhere. So ये हो गया आपके पास sporangiospores, right? The spores that are produced inside sporangia. They are produced inside sporangia. 2 types, zoospores and aplanospores. Now talking about the examples, we are doing the examples right over here. So talking about the examples, they are present only in case of your phycomycetes, right? So in case of your phycomycetes, you can see that there is presence of sporangiospores. Next is conidia, which is present in case of your रेस्ट क्लासेस, राइट. तो हमारे पास अगली क्लासेस में प्रेजेंट है, जैसे आपके एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज एंड अलोंग विद एस्कोमाइसिटीज, लेट मी राइट इट करेक्टली, अलोंग विद एस्कोमाइसिटीज they are present in your deuteromycetes, some of the deuteromycetes. ठीक है. तो ये हो गया कोनिडिया. अब कोनिडिया होता क्या है बच्चे? दिस इज योर हाइफा, राइट. तो ये हाइफा है आपके पास. हाइफे में बच्चा आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है. इस ब्रांच पे बच्चे बाहर की तरफ एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं. सो दीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया. यही आपके पास कोनिडिया है, ठीक है. तो ये तो आपका हाइफा हो गया. इस हाइफे की एक ब्रांच है बच्चे जिसके ऊपर आपके पास कोनिडिया ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं. So let me use another color. तो ये जो कोनिडिया आपके पास ग्रो होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, this hyphae or the branch is known as conidiophore. इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? Conidiophore. We call it as conidiophore. PHORE. ठीक है. तो ये आपके पास कोनिडियोफोर हो गए. अब ये कोनिडियोफोर कैसे बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं. सो दे आर प्रेजेंट, दे आर फॉर्म्ड
outside conidiophore, राइट? तो conidiophore के बाहर बन रहे हैं. दिस काइंड ऑफ ओरिजिन इज नोन एज एक्सोजीनस. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस ओरिजिन. तो कोई भी चीज ऊपर की तरफ बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी, आउटसाइड में बनेगी, दिस इज नोन एज एक्सोजीनस ओरिजिन, राइट? दिस इज नोन एज एक्सोजीनस ओरिजिन. तो बाहर की तरफ बन रहा है, वी कॉल इट एज एक्सोजीनस ओरिजिन. इसके अलावा एक और वर्ड होता है, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड, राइट? इट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड और ऑन. इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन समथिंग और इट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड समथिंग. इसी के जैसा एक और वर्ड होता है दैट इज नोन एज एंडोजीनस. तो एंडो का मतलब क्या हो गया बच्चा? अंदर की तरफ. जीनस का मतलब फॉर्मेशन. सो दे आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस, दे आर फॉर्म्ड inside, and inside which structure? Inside sporangia. So they are produced inside sporangia. जैसे आपके पास क्या हो गया? sporangiosپورस. तो ये जो sporangiosپورस है बच्चे हमारे पास, ये एंडोजीनस है. और जो आपके पास कोनिडिया है, दिस कोनिडिया इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन. ठीक है? तो एसेक्सुअल स्पोर्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास स्पोर्स बनेंगे. These spores are, right, there is formation of the spores. दो तरीके के स्पोर्स होंगे, whether they are produced inside the sporangia. If they are present inside the sporangia, we call them as sporangiospores. Two types, zoospores and aplanospores. If they are present exogenously, they are known as conidia present in ascomycetes and some of the deuteromycetes. Example is ascomycetes and deuteromycetes, and the branch on which they are produced is known as conidiophore. ठीक है? और कैसे बनते हैं? बाहर की तरफ बनते हैं, दैट इज एक्सोजीनस. यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर ही देती हूँ, लिख ही देती हूँ, कल को आप लोग बोलोगे तो. फ्यू ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है? कुछ ही ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया देखने को मिलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चों. सो दिस इज द कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है? तो फ्रेगमेंटेशन आपके पास आ गया. This is fragmentation, this is budding. So budding is shown by your yeast, fragmentation by most of them. Budding के साथ साथ binary fission हो सकता है, binary fission, right? Next हमारे पास आ गया spores, asexual spores में sporangiosspores. आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको. ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजिया. तो ये स्पोरेंजिया हो गया. और इस स्पोरेंजिया के अंदर आपके पास या तो जूस्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज फ्लेजिलेटेड. तो ये दो फ्लेजिला आपको दिखाई दे रहे हैं. एक अलग तरीके का फ्लेजिला है, एक दूसरा टाइप का फ्लेजिला है, बट काम क्या है? मोबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. तो ये कैसे है? मोटाइल हैं, जो स्विम कर सकते हैं इधर उधर. एंड नेक्स्ट वन इज एप्लानोस्पोर्स, जो आपके पास कैसे है? विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन. तो ये लोकोमोशन शो नहीं करते. लास्ट में हमारे पास आ गया कोनिडिया. तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से आपको एक ब्रांच दिखाई दे रहा है. ठीक है? ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको हटा के दिखाती हूँ दोबारा से आपको. तो जो ब्रांच हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कोनिडियोफोर, राइट? ये ब्रांच क्या है? कोनिडियोफोर, राइट? दिस इज योर कोनिडियोफोर. इसके अलावा आपके पास ऊपर की तरफ बाहर एक्सोजीनसली क्या प्रेजेंट है? कोनिडिया. So the yellow balls that you can see are your conidia. I hope the asexual and the vegetative mode of reproduction is clear to everyone. Next हमारे पास आ गया बच्चा sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है बच्चे? तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं. आई लुक आफ्टर दैट स्लाइड में यूज करने के लिए समझाऊंगी, बट इससे पहले हम लोग, मतलब मैं समझाने के लिए यूज करूंगी, यूज करने के लिए समझाऊंगी नहीं, समझाने के लिए यूज करूंगी. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं. दिस प्रेजेंस ऑफ थ्री स्टेप्स. कितने? थ्री स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सारी की सारी फंजाई में प्रेजेंट होते अगर फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके. सो द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगैमी. सबसे पहला क्या है? प्लाज्मोगैमी. तो इस तरीके से बेटा आपके हाइफे प्रेजेंट है. ठीक है? ये हाइफा प्रेजेंट है, हाइफा पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये दूसरा हाइफा प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये दोनों क्या कर जाएंगे बच्चे? फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे के साथ. या हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसके न्यूक्लियस को हम किसी और कलर से बना देते, लेट्स से रेड कलर से बना देते, ताकि हमें पता रहे कि क्या हो. ठीक है? तो इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी. एंड नाउ दे आर गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर.
इस तरीके से फ्यूज करेंगे दैट ओनली द साइटोप्लाज्म विल फ्यूज। तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा बच्चे, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन हो रहा है? दो हाइफे का फ्यूजन हो रहा है इन सच मैनर कि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा। फ्यूजन ऑफ cytoplasm except nucleus. So the nucleus is not going to fuse, right? Nucleus हमारे पास fuse नहीं करेगा. So this is the condition that you can see. इस कंडीशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन, राइट? क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। तो आप देख रहे हो ना, एक ही सेल के अंदर दो प्रेजेंट है, राइट? एक ही सेल के अंदर दो प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज डाइकैरियोटिक कंडीशन। So one cell having two nucleus, this condition is known as डाइकैरियन। क्या बोलेंगे हम इसको? डाइकैरियन। ठीक है, तो ये डाइकैरियन हो गया, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? डाइकैरियोटिक फेज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। डाइकैरियन क्या हो गया बच्चों? दिस डाइकैरियन इज n+n, ठीक है, which means there is presence of two nucleus per cell, two nucleus per cell। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। This kind of condition is known as dikaryon, also known as dikaryotic phase। इसको और क्या बोलते हैं? dikaryotic phase। ठीक है, तो ये आपके पास dikaryotic phase हो गया। फिर आगे चलते हैं बच्चा, प्लाज्मोगैमी के बाद जो सबसे पहला स्टेप है, इसके बाद फिर दूसरी चीज होगी दैट इज कैरियोगैमी। तो दूसरी चीज होगी कैरियोगैमी। दोबारा से हम वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं। कैरियो का मतलब क्या होता है बच्चे? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो दोनों न्यूक्लियस का अब क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेजेंट था, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब ये कैसा हो जाएगा बच्चे? इसके पास फ्यूजन हो गया, राइट? तो दोनों सेल्स फ्यूज करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना देंगे। क्या करेंगे? एक बड़ा सा डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। तो ये कैसा हो गया? 2n हो गया। ठीक है, पहले कैसा था? n+n कंडीशन थी, अब 2n कंडीशन होगी। एंड दिस इज नाउ नोन एज जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। सो आपके पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। सो कैरियोगैमी, कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसके फ्यूजन से क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया, एंड दिस थर्ड स्टेप क्या है बच्चा हमारे पास? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट में क्या हो जाएगा बच्चा? मियोसिस हो जाएगा, ताकि दोबारा से हमारे पास एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन सके, राइट? एक हैप्लॉइड हाइफे का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास जाइगोट क्या करेगा बच्चा? डिवाइड करेगा। तो इसको हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो मियोसिस हो जाएगा जाइगोट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएंगे बच्चे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार अलग अलग सेल्स बन जाएंगी, एंड दी सेल्स आर नोन एज स्पोर्स, राइट? सो न्यू सेल्स आर फॉर्म नोन एज स्पोर्स, और ये स्पोर्स की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगा। तो ये जो आपका जाइगोट है दैट इज डिप्लॉइड। ये जाइगोट कैसा है बच्चा? हमारे पास 2n है। ये 2n सेल डिवाइड करेगी मियोसिस से, और आपके पास क्या बन जाएंगे? चार हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। सो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म। तो चार हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो क्या हो गया बच्चे हमारे पास? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तीन स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और क्या बना देगा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना है इसके अंदर क्या हो जाएगा? मियोसिस, और मियोसिस के बाद आपके पास चार हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब जब हमारे पास बच्चे ये चार हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, तो ये स्पोर्स बाहर आएंगे, ठीक है,
ये स्पोर्स क्या करेंगे बेटा, बाहर आएंगे, राइट, दे विल बी रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। अब रिलीज हो गए आपके स्पोर्स, ये 1 2 3 4 बना लेते हैं हम, ठीक है, क्या आ गया आपके पास, स्पोर्स आ गए। अब ये स्पोर्स जैसे इनको कोई क्या मिलेगा, सुटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, ये दोबारा से जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, नया माइसीलियम बना देंगे। अंडर अ सुटेबल कंडीशन दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद हमारे पास नया माइसीलियम बन जाएगा। सो दिस इज न्यू माइसीलियम दैट यू कैन सी। सो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। मैं एक बार अच्छे से आपको दोबारा से समझा देती हूँ। सो ये आपके पास हो गया प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, द हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द टू डिफरेंट माइसीलिया, दो अलग अलग माइसीलिया से प्रेजेंट होने वाले हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे टू फॉर्म अ हेट्रोकैरियोटिक सेल विद 2 और मोर न्यूक्लियस, ठीक है। फिर हमारे पास माइसीलियम आया, इसके बीच में फ्यूजन हो गया, आप देख रहे हो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या होगा, कैरियोगैमी हो जाएगी। तो कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो द न्यूक्लिया फ्यूज, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके क्या बना देंगे बच्चा, एक जायगोट बना देंगे। ये जायगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, राइट, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट। अब ये डिप्लॉइड जायगोट मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में और रिलीज होने के बाद जर्मिनेट करके एक नया मल्टीसेल्यूलर माइसीलियम बना देंगे। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इस तरीके से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। चलो, with this let's move forward to the classification. So the fungi is classified on the basis of, किसके बेसिस पे, on the basis of two things. सबसे पहला माइसीलियम, ठीक है, सबसे पहला क्या होगा बेटा आपके पास, माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। सबसे पहला आपके पास हो गया माइसीलियम, कि भाई माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इसके बेसिस पे बच्चा हमारे पास 4 क्लासेस हैं। दीज क्लासेस आर, फर्स्ट वन फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है। फंजाई ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई, ठीक है, ये क्या हो गई, एल्गल फंजाई हो गई, क्योंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया बेसिडियोमाइसिटीज, आई होप इट इज विजिबल, और लास्ट में हमारे पास आ गया बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या आ गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इन सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो सबसे पहला बच्चा फाइकोमाइसिटीज आ गया, सबसे ज्यादा क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, ठीक है। ये कैसा है बच्चा, फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जनरली फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट और इन द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, राइट, सो आइदर इन द एक्वेटिक और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई। एल्गल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पानी में प्रेजेंट है एल्गे की तरह, राइट, सो इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा, एल्गल फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चा, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज दे फाउंड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट और द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हम इनको एल्गल फंजाई बोल रहे हैं। दे आर normally saprophytic in nature, right, they are saprophytic, or they are obligate parasites, they are obligate parasites on plant, ठीक है। तो प्लांट्स के केस में कैसे बच्चे, हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो ये पैरासाइट की तरह ही प्रेजेंट होंगे। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया, असेंशियली, असेंशियली, नेसेसरली, ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमेशा प्लांट्स के ऊपर कैसे प्रेजेंट होंगे, पैरासाइट की तरह प्रेजेंट होंगे।
और अगर प्लांट्स के ऊपर नहीं ग्रो करे तो ये सैप्रोफाइट्स की तरह ग्रो करेंगे, विच मीन्स दे आर मेनली गोइंग टू एक्ट एज योर डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है माइसीलियम। सो लेट्स टॉक अबाउट द माइसीलियम। तो माइसीलियम कैसा है बच्चा? एसेप्टेट है, एसेप्टेट सिनोसिटिक, एसेप्टेट सिनोसिटिक। तो इस तरीके का माइसीलियम प्रेजेंट होगा, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये वाटर बॉटल है, इसमें पानी प्रेजेंट है, तो पानी की जगह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होगी। सो वी कॉल इट एज एसेप्टेट सिनोसिटिक। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे कैसे होता है? हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन के अलावा इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जूस्पोर्स दैट इज मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स जो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। सो एप्लेनोस्पोर्स हो गए नॉन मोटाइल, इस तरीके से दिखाई देंगे सिंपल। और जूस्पोर्स हो गए मोटाइल, जो कैसे होंगे? फ्लेजेला के साथ प्रेजेंट होंगे। सो दे आर गोइंग टू हैव फ्लेजेला। दैट्स इट। ठीक है, सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, सैप्रोफिटिक होंगे या ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह होंगे, माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन या स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चे कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अच्छा देखो, अब हमारे पास माइसीलियम कैसे प्रेजेंट है? इस तरीके से माइसीलियम प्रेजेंट है, राइट? सिनोसिटिक माइसीलियम प्रेजेंट है, और ऐसे ही दूसरा माइसीलियम प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों जेनेटिकली थोड़े से डिफरेंट है, तो हम अलग कलर से इसका न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हमारे पास माइसीलियम आ गए, जो कंपैटिबल टाइप के, मतलब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगा तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, कितने सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। और इन सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया। क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया बोलते हैं, जहां पे हमारे पास फीमेल आ गया और मेल आ गया। तो मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल को हम बोलते हैं ऊगोनियम। ठीक है, अब इस तरीके से स्ट्रक्चर मान लेंगे बना, इसके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक ये आपके पास बन गया इस तरीके से, ठीक है, एक गैमेटेंजियम बन गया। दूसरा गैमेटेंजियम भी हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों गैमेटेंजियम हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये गैमेटेंजियम में कहता है इस तरीके से वॉल और सेपरेशन प्रेजेंट। तो एक वॉल और सेपरेशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 5 न्यूक्लियस मैम ने बना दी, यहाँ पे भी मैम ने 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस बना दी। ठीक है, अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, एंड दिस फ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हो गया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद बच्चा क्या होता है यहाँ पे? इमीडिएट। इमीडिएट क्या हो जाता है? कैरियोगैमी। तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता, जल्दी से क्विकली क्या हो जाएगा? कैरियोगैमी हो जाएगी। तो कैरियोगैमी के बाद फिर बच्चे आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी होने के बाद, और इसके अंदर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ जाइगोट्स दिखाई दे। ठीक है, तो ये आपको लिमिटेड नंबर ऑफ जाइगोट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जाइगोट्स कैसे डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड होने की वजह से इनमें क्या होगा? मियोसिस। सो दे विल बी जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद फिर आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है? हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स को ब्लू कलर से बना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपके पास एक कैलकुलेटेड नंबर में क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे एंड दी स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर्स। ठीक है, ये हमारे पास जाइगोस्पोर्स बन जाएंगे। ये जाइगोस्पोर्स फाइनली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। राइट, ये कैसे हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके बच्चा क्या कर देंगे, हमारे पास नया माइसीलियम बना देंगे। राइट, तो जर्मिनेट करके हमारे पास नया माइसीलियम बना देंगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। सबसे पहली चीज जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे हमारे पास हो रही है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स नोन एज गैमेटेंजिया। तो सेक्स ऑर्गन गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप भूल जाओ अभी के लिए, इसको छोड़ो, रहने दो। ठीक है, इसको रहने देते हैं। हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स बन गए गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया बनने के बाद इन दोनों के बीच में प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। आफ्टर प्लाज्मोगैमी दे विल बी इमीडिएट कैरियोगैमी, मतलब कोई बीच में इंटरवीनिंग स्टेज नहीं बनेगा, बीच में कुछ नहीं आएगा, तुरंत हमारे पास प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाएगी, कैरियोगैमी। जाइगोट्स बन जाएंगे। इन जाइगोट्स के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद क्या बन जाएंगे बेटा, जाइगोस्पोर्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज विद द हेल्प ऑफ योर जाइगोस्पोर्स। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख देते बच्चे, यस, नोट डाल के लिख देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज इज बाय जाइगोस्पोर्स। कई जगह पे आप लोग ऊस्पोर्स भी देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे कि ऊस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है, बट आप याद रख सकते हो कि ऑलमोस्ट दोनों सेम स्ट्रक्चर है, बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, बट उनका बस फॉर्मेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो दे विल बी प्रेजेंस ऑफ oospores एंड जाइगोस्पोर्स इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फिर ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, दे विल बी रिलीज, रिलीज करके जर्मिनेट करेंगे एंड आफ्टर जर्मिनेशन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम। तो इस तरीके से फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों फाइकोमाइसिटीज के, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए, सबसे पहला हो गया आपका राइजोपस। ठीक है, आप लोगों का फेवरेट राइजोपस, ये क्या हो गया, राइजोपस आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो गया दैट इज म्यूकर एंड द लास्ट वन इज एल्बू। ये एल्बुओ क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, दैट इज व्हाइट स्मट इन योर, व्हाइट स्मट इन योर मस्टर्ड, मस्टर्ड या हम बोल सकते हैं क्रूसीफर्स, राइट, व्हाइट रस्ट इन योर मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के अंदर क्या करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई फाइकोमाइसिटीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन दैट यू आर गोइंग टू सी इज योर एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं बच्चों। एस्कोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज सैक फंजाई, इनका दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई है। ये एस्कोमाइसिटीज हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन है नेचर में, इसके अलावा ये हमारे पास प्लांट्स पे, ट्रीज पे, बहुत सारी जगहों पे दिखाई देती है। वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दे आर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब क्या हो गया बच्चा, दे ग्रो ऑन डंग, राइट, दे ग्रो ऑन डंग, सो दे कैन ग्रो ऑन योर काउ डंग एक्सेट्रा। तो जितना भी एक्सक्रीट होता है उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। दे आर बेसिकली decomposers in nature that help in mineral recycling. इसके अलावा बच्चे एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इन केस ऑफ योर एस्कोमाइसिटीज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे हमारे पास माइसीलियम, माइसीलियम प्रेजेंट है एंड दिस माइसीलियम इज septate, right, they are going to have your septate mycelium। तो इस तरीके से प्रॉपर सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होगा। अदर देन दिस बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, यूनिसेल्युलर यीस्ट प्रेजेंट होगी, राइट। सो दिस इज अ की पॉइंट फॉर यू गाइज, नोट इट डाउन। सो यीस्ट इज अ मेंबर, यीस्ट दैट इज योर यूनिसेल्युलर फंजाई इज अ पार्ट ऑफ योर एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि एस्कोमाइसिटीज जैसे हमारे पास यीस्ट हो गई, राइट,
Yeast एक unicellular organism है. Yeast is a unicellular organism. Can you guys tell me why is it not placed in your kingdom Protista? It should belong to kingdom Protista, but it belongs to Ascomycetes. Can anyone tell me the reason? So let me tell you the reason. That is due to presence of chitinous cell wall. Right? They're going to have chitinous cell wall. This is why yeast is present in your fungi. Yes, they are going to have chitinous cell wall. So the cell wall made up of chitin is present in your yeast. So this is about the Ascomycetes, coprophilus. They are going to grow on the tongue. Other than this, you can find them as a decomposers. You can find them as a parasite. Mycelium is septate. Along with this, they have your unicellular yeast, that is unicellular fungi, that is yeast, because of its chitinous cell wall. Now talking about the reproduction, that is asexual reproduction. So the asexual reproduction can occur with the help of fragmentation. तो fragmentation हो सकता है बच्चे यहाँ पे, which is common for all the filamentous fungi, and there is presence of your conidia. ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? कोनिडिया प्रेजेंट होगा. सो फ्रेगमेंटेशन और कोनिडिया कैन बी प्रेजेंट. तो इस तरीके से आपके पास एक्सोजीनस कोनिडिया प्रेजेंट हो सकते हैं. एक्सोजीनस मतलब बाहर की तरफ बन रहे हैं, राइट? किसी चीज के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर और बाहर बन रहे हैं. सो दे आर एक्सोजीनस. नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया बच्चे? द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम चीज होगी हमारे पास. प्लाज्मोगैमी followed by karyogamy followed by zygotic meiosis. ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है जो मैं आपको समझाऊंगी. तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट स्टेप हो गया प्लाज्मोगैमी, सेकंड हो गया कैरियोगैमी, थर्ड हो गया जाइगोटिक मियोसिस. तो दो अलग अलग माइसीलियम एक दूसरे के साथ आके फ्यूज हो जाएंगे. मैं बना देती हूँ एक बार. ठीक है, ये तीन अलग अलग हाइफे आप देख रहे हो. ये सारे आके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे. दैट मीन्स दे विल बी प्लाज्मोगैमी, राइट? प्लाज्मोगैमी के बाद बच्चे हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा. प्लाज्मोगैमी हो जाएगी तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा वेयर दे विल बी प्रेजेंस ऑफ बोथ द टाइप ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके पास ये स्टेज बनता है देन इट इज गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम. इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइकैरियोटिक फेज. क्या बोल देते हैं इसको? डाइकैरियोटिक फेज. हमारे पास डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट है आफ्टर प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी के बाद बच्चे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डाइकैरियोटिक फेज, जहां पे एक सेल कैसी है? डाइकैरियोटिक है. और इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा? n+n कंडीशन प्रेजेंट है, विच मींस देयर आर टू न्यूक्लियस पर सेल. इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज. अब फाइनली बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा? हम आगे की तरफ मूव करेंगे. दे विल बी कैरियोगैमी. कैरियोगैमी हो जाएगी और कैरियोगैमी के बाद बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउ यू आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे? 1 2 and 3. हमारे पास बड़ी बड़ी सेल बड़े बड़े न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड दीज न्यूक्लियस आर नोन एज जाइगोट. सो दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर जाइगोट. ठीक है, ये जाइगोट बन गया, दैट इज डिप्लॉयड. अब फाइनली जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चा? मियोसिस हो जाएगा. ठीक है, बट जाइगोट के मियोसिस से पहले यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एस्कस. सो दे विल बी डेवलपमेंट ऑफ एस्कस. ठीक है, तो एस्कस का डेवलपमेंट होगा. एस्कस क्या है? एस्कस स्पोरेंजिया है. एस्कस इज योर स्पोरेंजिया. तो इस तरीके से हम बना लेते हैं कलर हमारे पास आगे. ठीक है, तो इस तरीके से बाहर की तरफ बच्चे कुछ आउटग्रोथ बन जाएंगे. कुछ आउटग्रोथ बन जाएंगे इस तरीके से एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज योर एस्कस. इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कस. तो ये आपके पास एस्कस बन गया. इस एस्कस के अंदर आपका जाइगोट आ गया. ठीक है, ये आ गया आपके पास जाइगोट. तो मैं ऊपर लिख देती हूँ कहीं पे नोट डाल के विद अ ब्लैक कलर. अरे ब्लैक कलर चाहिए भाई, तो ये नोट डाल के लिख रही हूँ मैं. एस्कस इज इक्वल टू योर स्पोरेंजिया. ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेप होगा, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस. जाइगोटिक मियोसिस.
और जाइगोटिक मेयोसिस के बाद बच्चे ये जो आपके पास एस्कस जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या बन जाएंगे बच्चा, हमारे पास 3 स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, 3 स्पोर्स बन जाएंगे एंड दी स्पोर्स आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। सो 4 बन जाएंगे, सॉरी 1 2 3 4 मियोसिस हो रहा है ना, सो 4 एस्कोस्पोर्स विल बी फॉर्म। 1 2 3 4 1 2 3 4, right? And these spores are known as ascospores. We call them as ascospores. So there is presence of ascospores inside a ascus, right? There is presence of the ascospore inside a ascus. ठीक है, तो ascus के अंदर ascospores present है। Now finally बच्चा there is one more thing that is going to happen in case of your ascomycetes. एक और last चीज है हमारे पास। After this what is going to happen? This is important point. So after this there will be mitosis. There will be mitosis in each एस्कोस्पोर। तो हर एक एस्कोस्पोर के अंदर माइटोसिस हो जाएगा। अगर माइटोसिस हो जाएगा, कैन यू गाइस टेल मी हर एक एस्काई के अंदर और हर एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे? पहले हमारे पास 4 थे, एक एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट थे, यस। एक एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट थे। अब हम बोल रहे हैं कि हर एक के अंदर माइटोसिस हो जाएगा, तो टोटल कितने एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे इनसाइड वन एस्कस? So there will be presence of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? तो 8 एस्कस प्रेजेंट होंगे। हाउ मेनी एस्कस विल बी प्रेजेंट? There will be presence of your 8 ascus. There will be presence of 8 ascospores, 8 ascospores in each ascus. तो हर एक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओहो, in each ascus. हर एक एस्कस के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे? 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट। ठीक है, अब एक और चीज होती है बच्चे यहाँ पे, दे विल बी दिस कंडीशन दैट यू कैन सी, राइट? तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन प्रेजेंट है। So there will be lots and lots and lots of एस्कस, और इस एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या आपके पास एस्कस है, और एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एस्कोस्पोर्स। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो एस्कस होता है ना, इसके आसपास कुछ जो आपके पास माइसीलियम होता है, राइट? थोड़ा बहुत माइसीलियम जो आपके पास पार्टिसिपेट किया, मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ, लेट मी मेक इट अगेन। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बने थे, 1 2 3, तो मैं 3 ही ले लेती हूँ एग्जाम्पल में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है एस्कस। एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा? एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, दैट इज द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ योर एस्कोमाइसिटीज। और अब बाहर से बच्चा क्या होगा, हमारे पास जो बाकी का माइसीलियम था, राइट? रेस्ट ऑफ द माइसीलियम विल कवर इट, राइट? तो बाकी का जो स्टेराइल हाइफे है, स्टेराइल हाइफे जिसने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट? तो ये स्टेराइल हाइफे एक कवरिंग बना देगा, एंड दैट कवरिंग इज नोन एज एस्कोकार्प। क्या बना देगा? एक कवरिंग बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक कवरिंग प्रेजेंट है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज नोन एज जनरली इट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, जनरली नोन एज, अच्छा चलो इसको हटा देते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी, दिस कवरिंग इज नोन एज एस्कोकार्प। हमने क्या बोला इसको? एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मैनी एस्कस, और हर एक एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 8 एस्कोस्पोर्स, 8 एस्कोस्पोर्स पर एस्कस। तो हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो पूरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है, जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है,
This entire structure that you can see is known as, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? This entire structure is known as fruiting body. इसको हम क्या बोलते हैं? fruiting body. ठीक है, तो ये fruiting body हो गया. एस्कोकार्प, आई होप इट इज क्लियर. एस्कोकार्प आ गया. एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स. एस्को, से इट विद मी, एस्कोस्कार्प. एस्कोकार्प के अंदर एस्कस और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स. कितने प्रेजेंट होंगे? 8 एस्कोस्पोर्स. सो दिस इज हाउ इट लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप. सो यू कैन सी, ये मेरे पास एस्कस है, राइट? सिंगुलर फॉर्म इज एस्काई. सो हमारे पास मेच्योर एस्कस प्रेजेंट है एंड द स्टेराइल हाइफे इज गोइंग टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला? फ्रूटिंग बॉडी, राइट? सो ये फ्रूटिंग बॉडी में. सो एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर्स. कितने एस्कोस्पोर्स होंगे बच्चे? 8. ये जरूरी है याद रखना क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में होता है. इनसाइड एस्कस, तो किसके अंदर बन रहे हैं? एस्कस के अंदर बन रहे हैं. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोजीनस. कैसे बन रहे बच्चा? एंडोजीनस. तो एंडोजीनस ओरिजिन के साथ है क्योंकि ये किसी के अंदर बन रहे हैं, ये एस्कस के अंदर बन रहे हैं. वी कॉल देम एज एंडोजीनस स्ट्रक्चर. ठीक है. With this is how the fruiting body looks like. So these are the fruiting bodies, two different type of fruiting bodies that you can see in your environment. क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है, तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट होंगे. लॉट्स ऑफ एस्कस विल बी प्रेजेंट और उस एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे. दी स्पोर्स विल कम आउटसाइड. स्पोर्स बाहर आएंगे. दे विल जर्मिनेट और जर्मिनेट करके क्या करेंगे बच्चा? दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम. दैट्स इट. ठीक है, चलो. With this, here comes the examples of your ascomycetes that are given in your that are important for your exams. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या examples है? पेनिसिलियम, Saccharomyces, Aspergillus, Claviceps and Neurospora. So you can remember them as Pensy, right? You can remember them as Pensy. तो Pensy से हमारे पास P से हो गया पेनिसिलियम. पेनिसिलियम जिससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं बच्चा? एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, दैट इज पेनिसिलिन. ए फॉर एस्परजिलस. एस्परजिलस, ठीक है. एस्परजिलस इज नोन एज वीड ऑफ लैब्स. वीड ऑफ लैब्स क्योंकि ये इजीली कहीं पे भी ग्रो कर जाता है, राइट? वेरी इजी टू ग्रो, वेरी इजी टू ग्रो. और ग्रो करने के साथ साथ क्या करता है? एंड कॉजेज कंटेमिनेशन. एंड कॉजेज कंटेमिनेशन. तो हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें क्या करता है? कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट वन इज न्यूरोस्पोरा. इट इज यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडीज, राइट? न्यूरोस्पोरा. फिर हमारे पास सी से आ गया क्लेविसेप्स. And the last one is your yeast. लास्ट कौन सा बेटा हमारे पास? yeast हो गया. ठीक है, दैट इज योर यूनिसेलुलर फंजाई. तो हमारे पास पेनिसिलियम हो गया. Saccharomyces is the scientific name for your yeast, right? तो ये yeast हो गया. Aspergillus, Claviceps and Neurospora. ठीक है. इसके अलावा बच्चे दो और एग्जांपल्स है, दैट इज morels and truffles. Morels and truffles are your edible. They are your edible ascomycetes. Morels and truffles बहुत important है. So this is the trick to remember all your examples. Pensy, that is penicillium, Aspergillus, Neurospora, Claviceps and your yeast, that is Saccharomyces, along with morels and truffles that are edible ascomycetes. Next हमारे पास आगे बच्चों Basidiomycetes. We are going to have your quiz as well. क्लास के बाद हम quiz करेंगे. It will end in like next 10 minutes. थोड़ा सा लंबा हो गया ना. Basidiomycetes आ गया बच्चा हमारे पास. They are also known as puff fungi. इसको puff fungi बोलते हैं. Also known as bracket fungi and lots of different names, right? बहुत सारे अलग अलग names है. This is going to include your mushroom. So it includes edible mushroom. तो हमारा edible mushroom इसी में आता है. ठीक है.
कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वैसे ही है जनरल कि भाई किस किस एरिया में ग्रो करेगा, तो ग्रो तो वहीं पे करेगा जहाँ पे जनरली फंजाई ग्रो करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। इसके अलावा माइसीलियम डिस्कस कर लेते हैं। माइसीलियम हमारे पास कैसा होता है, सेप्टेट होता है। दोबारा मैं बार बार पता नहीं क्यों ए लिख देती हूँ, सेप्टेट होता है, राइट, इट इज सेप्टेट, सेप्टेट प्रेजेंट है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, दैट द एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। तो इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, दे आर एब्सेंट, दे आर एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही होगा, प्लाज्मोगैमी। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या बन जाएगा, डाइकैरियन बन जाएगा। डाइकैरियन में क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी, राइट, दे विल बी कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के बाद फिर हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा, जायगोट। जायगोट में क्या हो जाएगा, जायगोटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस। और ये जायगोटिक मियोसिस के बाद क्या बना देंगे हमारे पास, बेसिडियोस्पोर्स। क्या बना देंगे, बेसिडियोस्पोर्स। हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं इतना सा आपको समझाती हूँ, राइट, दो चार चीजें मैं आपको समझा देती हूँ बेसिडियोमाइसिटीज में। ये माइसीलियम प्रेजेंट है, ठीक है, ये दोनों माइसीलियम एक दूसरे के साथ आएंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन, इनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इनमें प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। सो दे विल बी प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के बाद बच्चे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन बन जाएगा, राइट। तो डाइकैरियन बन जाएगा। डाइकैरियन में क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी हो जाएगी। और कैरियोगैमी के बाद क्या बन जाएंगे, जायगोट। तो हमने डायरेक्टली जायगोट बना दिए। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन बन जाएगा। डाइकैरियन के बाद कैरियोगैमी हो जाएगी। मतलब मैं लिख रही हूँ बस, आई एम जस्ट राइटिंग देम, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ देम अगेन एंड अगेन। आपको पहले से पता है कि कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो डाइकैरियन, और डाइकैरियन के बाद क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी, सिमिलर टू योर एस्कोमाइसिटीज, राइट, दिस विल बी सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज। अब इसके बाद लास्ट में बच्चे क्या होगा, ये आपके पास जायगोट बन गए। तो जाहिर सी बात है, जायगोट बनने के बाद बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बेसिडियम। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं, बेसिडियम। सो दिस इज बेसिडियम, आपके पास बेसिडियम बन गया। अब बेसिडियम के ऊपर बच्चा आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, राइट। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स आउटसाइड। तो ये बाहर की तरफ हमारे पास क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। एंड दीज फोर स्पोर्स आर नोन एज, दीज फोर स्पोर्स आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। सो दिस इज योर बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल जायगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, और जायगोटिक मियोसिस के साथ साथ आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिडियम बन जाएगा। तो मैं ये स्ट्रक्चर ऊपर बना देती हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये बन गया आपके पास। दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बेसिडियम। तो हमारे पास बेसिडियम बन गया। बेसिडियम के ऊपर बन रहा है, राइट, इट इज ऑन द बेसिडियम, सो वी कॉल देम एज एक्सोजीनस। So there will be formation of your exogenous basidiospores. This is exogenous basidiospores, right? Exogenous basidiospores will be present. That will be 4 in number, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ meiosis हो रहा है, mitosis नहीं हो रहा. So they are 4 per बेसिडियम। तो हर एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स विल बी प्रेजेंट। अब इसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास, आफ्टर दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूटिंग बॉडी। तो आपके पास फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, कवरिंग बन जाएगी।
and this covering is known as basidiocarp. इसको क्या बोलेंगे? Basidiocarp. So inside the basidiocarp there will be presence of basidium having your exogenous basidiospores. तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है, जबकि आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या प्रेजेंट थे? एंडोजीनस एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट थे, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स. चलो, विद दिस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर बेसिडियोमाइसिटीज. तो एग्जांपल्स की बात करें, वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज अगैरिकस. Agaricus आ गया बच्चा, दैट इज योर कॉमन मशरूम, द एडिबल मशरूम दैट वी ईट. ठीक है, जो कॉमनली हम लोग मशरूम खाते हैं, दैट इज अगैरिकस. नेक्स्ट वन इज योर पक्सीनिया. तो ये आपके पास है पक्सीनिया. पक्सीनिया क्या करता है बच्चा? इट इज गोइंग टू कॉज अ डिजीज, पैथोजेनिक है, इट कॉजेज अ डिजीज दैट इज योर रस्ट, राइट? इट इज गोइंग टू कॉज योर रस्ट इन व्हीट. क्या कॉज करेगा? रस्ट डिजीज कॉज करेगा इन योर व्हीट. द नेक्स्ट वन इज अस्टिलागो. ये क्या बेटा आपके पास? अस्टिलागो. सो दिस इज अस्टिलागो, जो क्या कॉज करते हैं बेटा? स्मट. स्मट इन मेज. ठीक है, तो मेज में क्या करते हैं? स्मट डिजीज कॉज करते हैं. इट इज ऑल्सो पैथोजेनिक. तो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं बच्चा? स्मट. मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कॉजेज स्मट इन मेज. ठीक है, तो मेज में स्मट कॉज करता है. और ये लास्ट वाला आपके पास हो गया अमेंटिया. तो अमेंटिया दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स में भी देखा होगा अमेंटिया. बट दिस अमेंटिया इज पॉइजनस. कैसा होता है बच्चा? पॉइजनस. तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? पॉइजनस, पॉइजन प्रेजेंट होता है. सो इट इज पॉइजनस. तो इसको कभी खाना नहीं है. ठीक है, जंगल में देखोगे तो कभी खाना नहीं है. So this is all about basidiomycetes. Next हमारे पास आ गया next and the last one, that is deuteromycetes. So we call them as imperfect fungi. और इसको हम commonly क्या बोलते हैं? Dustbin of kingdom fungi. Dustbin of किंगडम फंजाई. तो किंगडम फंजाई का डस्टबिन भी हम इसे बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसको हम डस्टबिन ऑफ किंगडम फंजाई? लेट्स लर्न अबाउट दिस. सो यहाँ पे बच्चा हमारे पास माइसीलियम प्रेजेंट होगा. माइसीलियम, माइसीलियम इज सेप्टेट. ठीक है, इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो दे कैन हैव फ्रेगमेंटेशन and some of them are going to have asexual spores. Asexual spores in few. और asexual spores में भी कौन से प्रेजेंट होंगे? कोनिडिया in few. तो कुछ के अंदर कोनिडिया प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अननोन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अननोन. रिप्रोडक्शन इज अननोन. तो हमें नहीं पता है कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. बट वंस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन, वंस वी लर्न about the sexual reproduction, about the mode of sexual reproduction, mode of sexual reproduction, we place them, right? We place them in right class. We are going to place them in right class, that is Ascomycetes or Basidiomycetes. ठीक है, so this is all about your deuteromycetes. Normally it is going to have your decomposers. So the example is Alternaria, Trichoderma and Coleotrichum. तो ये हमारे पास examples हो गए, Alternaria, Trichoderma and Coleotrichum. So Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma. So these are the examples. Alternaria, which is going to cause a disease in potato. Coleotrichum, and the last one, I think there is some mistake in the spelling, right? Let me see. There is some mistake with your spelling. It should be L. Coleotrichum. Coleotrichum. Right? It is Coleotrichum.
एंड द नेक्स्ट वन इज योर ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गए। दे आर वेरी गुड इन योर डिकम्पोजिशन, तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। डिकम्पोजर्स, दे आर मेनली गोइंग टू एक्ट एज योर डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। So that's all, बच्चों. So this is the classification of your fungi. Classification, right? Classification of fungi, that is kingdom Mycota. एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, बाकी मैंने आपको ट्रिक बताई दिया है टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. Moving to the next one, these are the uses. So symbiotic association में present हो सकते हैं, which we have already discussed. They can be present in the form of lichens or in the form of mycorrhiza. Antibiotic source, that is penicillium, which is obtained from penicillin. Penicillin, which is obtained from penicillium. Yeast के uses है to make the bread and beer, right? तो ये हमारे पास brewers fungi और bakers fungi के नाम से famous है. And they causes certain diseases, that is the wheat rust caused by Puccinia and the loose smut of wheat caused by your Astilla. ठीक है, तो ये सारी diseases cause करते हैं ना, loose smut of maize and bajra, not wheat. Chalo. So with this, bachcho, let's move forward, and now it's your quiz time. All the very best to my kids, and here comes your first question. So this fungi division includes club fungi. So this fungal division includes club fungi. तो यहाँ पे बच्चा ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया क्लब फंजाई. तो क्लब फंजाई, इसके अलावा मैं आपको दो चार नाम और दे देती हूँ ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको. ब्रैकेट फंजाई, also known as puff fungi. अब तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर. Yes. So read all the options carefully. And 3, 2, 1. Let's see what's the correct answer. The correct answer is Basidiomycetes, right? Basidiomycota. ये डिवीजन है. और अगर हम क्लास की बात करेंगे, अगर हम बोलते हैं क्लास, तो क्लास आ जाएगा बेसिडियोमाइसीटीज. ठीक है, ऐसे आपके पास जाइगो माइकोटा हो गया, ड्यूटेरोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा हो गया, जो क्या है, डिविजन है. नेक्स्ट वन, दिस ग्रुप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पैथोलॉजिकल फंजाई, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डिजीज कॉजिंग फंजाई प्रेजेंट है. दीज आर योर डिजीज कॉजिंग फंजाई. जल्दी से बताओ. Look at the option: penicillium, truffles, mushrooms and morels, smut, rust and albugo. Easy peasy lemon squeezy. So the correct answer is smut, rust and albugo. ये दोनों तीनों कैसी हैं, पैथोजेनिक हैं, जो डिजीज कॉज करती है. पक्सीनिया कॉज करती है हमारे पास रस्ट, स्मट कॉज करता है हमारे पास अस्टिलागो, और एल्बुगो भी हमारे पास क्या करता है, डिजीज कॉज करता है. पेनिसिलियम इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. और ये तीनों के तीनों कैसे हमारे पास एडिबल, दीज आर एडिबल फंजाई. यस. चलो. So with this, let's move forward to the next question. The fungi which derive their food directly from the dead organic matter are known as. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, तो कोई भी इसका आंसर दे सकता है. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डीकॉम्पोजर्स, राइट. सो डीकॉम्पोजर्स जो हमारे पास डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे. Next one is, what is the name of the special hyphal tube through which the parasitic fungi absorb the nutrients directly from the cytoplasm of the host, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है बच्चे, मैं आपको समझा देती हूँ. तो हमारे पास ये प्लांट है, ये प्लांट की सेल्स है, राइट. दीज आर द सेल्स ऑफ द प्लांट, एपिडर्मल सेल्स है. फिर उसके नीचे और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, एंड देन फाइनली दे विल बी प्रेजेंस ऑफ योर, and finally there will be presence of your xylem and phloem. तो ये हमारे पास आ गया xylem and phloem. This is xylem and phloem.
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंजाई ग्रो कर रही है, सो दिस इज द फंजाई दैट इज ग्रोइंग। ठीक है। अब इस फंजाई को क्या करना है, न्यूट्रिशन लेना है। तो ये क्या करेगी, अंदर की तरफ ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है। ठीक है, इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, एंड दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया क्या करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड, राइट, वाटर और फूड का अब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो ये आपके पैथोजेनिक फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, so the correct answer is Haustoria. With this, the next one is not your homework question. Okay, this is your homework question, kids. So you have to give the answer in your comment box, right? Answer in comment box. So which of these entities is an indicator of SO2 pollution of the air, right? तो SO2 pollution कौन हमें बताता है, इसके लिए आप अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं, and you guys can give me the answer in the comment box. Puffballs, mushrooms and your mosses. ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास lichen. So this is your homework question. Hope you guys are going to give me the answer in the comment box. I will revert back to each one of you. Now with this, kids, thank you so much for this amazing session. Always keep on smiling and all the very best for your examinations. Always have the faith in yourself that yes, I am going to do my best. With this, thank you so much, kids. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. And don't forget to share it with your friends as well. So bye-bye, kids. Thank you so much for this amazing session. I'll see you guys soon on next Sunday with a new topic. Bye-bye.